I'm the only one. I am the dentist in my city. The dentist who can make 9 crore easily. 9 crores for sure. मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट इन इंडिया आई फील कि उनके पास वो माइंडसेट ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि कितना स्कोप है डेंटिस्ट्री में. What is touching your patient, you never compromise. You get what is best that time. मार्केट कैसे रहना चाहिए अगर कोई इनिशियल लेवल पे सेट कर रहा है क्लिनिक? You don't make money, your mindset makes money. And you build mindset, God gives money. बिना नाइटर्स के प्रैक्टिस करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. One life mantra for you. So today I'm with one and only in India, the best, Dr. Rohan Bhatt. And I'm so glad that I got a chance to do a podcast with you, sir. Pleasure is all mine. I am Dr. Simran Chorwani, a pediatric dentist, and he's one of the biggest inspiration for me doing pedo. So thank you so much. Welcome aboard to our place, and thank you so much for having this. I'm so sorry I missed it last time. I'm regretting that, but finally today is the day. Yes. So tell me about your that $1 million practice management. कैसे होता है? How do you do that? First of all, I was so fascinated with the word when I went to US for the first time that everybody is talking is $1 million, right? We are all accustomed about lakhs and crores and all. That it was all $1 million. And if you convert it down, $1 million in India today, I don't know whatever the cost of conversion is, but let's say roughly 90 rupees. So about 9 crore rupees. And I strongly believe that a dentist who can make 9 crore, I mean, grossing of course, can make easily 9 crores for sure. That's why I've been preaching these things for everybody saying $1 million practice. That is the funda behind it. So how, like, what's your vision behind it? कि वो क्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं कि वो प्रैक्टिस में आप इंक्लूड करोगे सो यू विल गेट अ स्मूथ पाथ. See, first of all, मैंने 2 चेयर से स्टार्ट किया था and I still feel I'm a 2 chair guy. Why? Because I still work with the 8 hour, 9 hours working time, full energy, all screwed up work-life balance from day one till today. तब भी ऐसा था कि कुछ नया करें, बेहतर करें. So technology acceleration was with me and we keep adapting new things. Like we were the one who got nitrous so much so-called first to our place and our city and all. So we started practicing around that. So आज भी हम कोई भी नई चीज आती है, we adopt first and the mindset. So I always say that you don't make money, your mindset makes money. And you build mindset, God gives money. Wow. That's what the next point I was coming to. कि वो माइंडसेट है, वो विजन है जो आपको वहाँ लेके जाता है. मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट इन इंडिया आई फील कि उनके पास वो माइंडसेट ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि कितना स्कोप है डेंटिस्ट्री में. प्रॉब्लम मैडम माइंडसेट कब बनेगा? जब करेज होगा. हमारा प्रॉब्लम है हम पहले बाजू वाले को देख रहे हैं, मेरा कॉम्पिटिटर है, इतने ज़्यादा डेंटिस्ट है, ये हो रहा है, हमारा सिटी आपको पता नहीं है सर. व्हेन आई इंटरेक्ट विद थिंग्स, नो. इफ यू आस्क मी हाउ मेनी डेंटिस्ट आर देयर इन माय सिटी, आई एम द ओनली वन. Because I don't know. I don't want to know. I know actually the number. Yes. We are about 7,000 to 8,000 practicing in my city, but I don't want. According to me, I am the dentist in my city. I don't want to see anybody else. What others are doing, how they are doing, what maybe they are charging, how they do it. I don't care. I care about myself, what I can do each day with my build mindset, which is learning new things, implementing it right. Never look at money when you practice. And very simple. पैसा भगवान देता है, काम आप करते हैं, वो फंडा है, खत्म. So let's divide into 2 segments maybe. See, everybody comes from different strata of background, right? Somebody has a lot of money, somebody has father is school teacher. By the time they finish the bachelor's, master's, they are practically retired. So I would go for 2 parts. Let's say somebody is starting so basic, rented place, rented area. I would say no shame starting with a single chair on store. कुछ गलत नहीं है, आपके लिए जो सही है ना वो आपका है. कोई ऐसा दुनिया में फंडा नहीं कि बड़ा क्लिनिक ही बेहतर प्रैक्टिस बनाता है, नहीं. एक चेयर से चालू करो, टारगेट रखो दिन के 7 से 8 पेशेंट कैसे आए. 1 chair, a good sterilization setup,
want a good chair. So never compromise buying dental equipment. You might compromise choosing glass, light, or maybe reception desk or whatever. But what is touching your patient, you never compromise. You get what is best that time. Get friends and family on board. पैसा उधार ले लो भाई साहब, बैंक बैठी है आपको देने के लिए. करेज रखो, कर सकते हो. हमारी दिक्कत क्या है ना करेज की, क्योंकि हमने पढ़ लिया है. हाँ. सो एजुकेशन करेज दबा देता है. अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो कोई कंपटीशन नहीं पता नहीं, क्योंकि बनिए की दुकान खोलनी है कल, तो वो नहीं, उसको भी पता है कि सामने भी बनिए की दुकान है, इधर भी बनिए की दुकान है. वो बिना पढ़े कंपटीशन में लग जाता है कि मैं, और वो भी वही दाल बेच रहा है जो बाजू वाला बेच रहा है. वो भी 17 रुपये किलो बेचेगा, बाजू वाला 17 रुपये, व्हाटएवर द कॉस्ट इज. उसको एक ही चीज़ आती है कि भाई मैं कस्टमर रिलेशन को कैसे बिल्ड करूँ कि मेरे से वो दाल खरीदने, टूथपेस्ट खरीदने आए. सो वन चेयर, अ गुड चेयर वुड कॉस्ट अबाउट 2 to 3 lakh rupees. Don't go for those shady chairs because eventually they will haunt you. ये जो बीच वाला सेगमेंट है उसमें आपको अच्छा चेयर मिल जाएगा जो आपके लिए एटलीस्ट 7 to 8 years लास्ट करना चाहिए. इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट इज 2 to 3 years. You keep remodel it. Buy good extraction forceps set. Critically important, a good aerator or air motor if you can invest. A good intraoral camera, क्योंकि पेशेंट को दिखेगा तो ही वो कराएगा. पहले दिन शायद आप स्कैनर ना लो, क्योंकि स्कैनर अफोर्डेबल हो गए तो आप ले सकते हैं. 2-2 लाख में भी मिल रहे हैं अच्छे स्कैनर. बट एटलीस्ट इंट्राओरल कैमरा जो 20-30,000 का वो आप ले सकते हैं. अ गुड स्टरलाइजेशन मशीन वुड कॉस्ट यू अबाउट, आप चलो बी क्लास ना जाओ, एन क्लास चले जाओ, 70-80 हज़ार रुपये का. मैं कहता हूँ मोटा मोटा अच्छी क्योरिंग लाइट, ऑल दिस थिंग्स यू मेक इट अ टोटल ऑफ इट वुड नॉट कॉस्ट यू. अ गुड कंपोजिट किट, अ गुड basic instrument materials and all. I think in 5 you can do it easily, maybe lesser than that. But ज़्यादा खर्चे तो ये मेन 3-4 चीज़ों में ही है. तो अगर आपका 1 है तो 5, 2 है तो फिर पूरा रिपीट नहीं होता है, तो आप 8-9 में कर सकते हैं 2 चेयर के साथ. अगर आप खुद का जगह पे डालते हैं, फ्लिप साइड है थोड़ा सब कुछ हाई एंड चले जाते हैं. 2 की जगह आप 3 में चले जाएंगे. आप मोटराइज सेक्शन में इनबिल्ट करवा रहे हैं. नाइट्रस critically important even for GPs, not only for pediatric dentists. बिना नाइट्रस के प्रैक्टिस करनी ही नहीं चाहिए क्राइम में, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उसी ने मेरी भी प्रैक्टिस बिल्ड करी है. दैट चेंजेस पेशेंट एक्सपीरियंस टू नेक्स्ट लेवल. Yeah, that's magical. वो उसका 10x फोल्ड हो जाता है पेशेंट का एक्सपीरियंस जो बदल जाता है. हाँ, the comfort is max level. So add up nitrous into that. Nitrous would start to about 3 to 4. A good branded machine. Never go to any non-branded or somebody's locally manufacturing. No, because it's directly going to patient's lungs, so you can't take that. So a good nitrous machine, and then totaling up to 15 is max good enough to get you the best of the equipment. Yeah. Then whatever is the interior cost, मतलब आप पा लुकिंग क्लिनिक से लेके बेसिक भी करा सकते हैं. मेरे हिसाब से 1,500 rupees a square foot should one person keep in their mind, including the TVs, ACs and everything. For the interior cost, that should be enough. So if you are having a 2-chair setup, presumably about 400-500 square feet, तो 8-10 लाख रुपए का इंटीरियर होना ही है. 15 लाख के इक्विपमेंट, 25 is a good investment for B segment which we discuss. So we come to the marketing. जो मार्केट कैसे करना चाहिए अगर कोई इनिशियल लेवल पे सेट कर रहा है क्लिनिक. सो like you said कि 7 to 8 पेशेंट्स का डेली का आपका होना चाहिए. If you are a 1 chair, maybe 2 chair also, but that should be your basic. Per chair maybe. But that's ideal. But चलो basic आपका 7-8 पेशेंट का फुटफॉल चालू हो गया, मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो. So वो मार्केटिंग कैसे करें कि वहाँ पे पहुँच पाए? So first of all, go to market strategy. Go to market strategy बहुत तरीके से डिसाइड होती है. आप क्या कर रहे हो, आप क्या बेच रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो शेम इज बिकमिंग अ सेल्समैन. अगर आप सेल्समैन नहीं हो, आपका कोई काम ही नहीं. आप एक्सेप्ट कर लो कि आप सेल्समैन हो. हर बंदा आज की तारीख में सेल्समैन है, कोई भी इंडस्ट्री में. अगर वो डॉक्टर है, सर्जन है, इंजीनियर है, सीए, कुछ भी है, उसको पिच करना आना चाहिए. सो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी नंबर 1. मैंने क्या नहीं किया ये मुझे पूछो आप. मैं फ्ली मार्केट्स जो लगते हैं संडे को, इसमें हम ओरल हेल्थ अवेयरनेस के स्टॉल लगा खड़े थे, ब्रशिंग करना सिखा रहे हैं, एक्टिविटी लगा रहे हैं कि दांतों के ऊपर कलर भरो आप. मॉल में संडे के दिन कियोस्क लगाते थे अवेयरनेस एक्टिविटी के नाम पे, पर वो हो रहा था हमारा ब्रांडिंग ही. हमने कोई स्कूल छोड़ा नहीं हमारे सिटी का जहाँ पे हमने फ्री में जाके चेकअप नहीं किए. बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हमने सोचा ही नहीं कि स्कूल
कि फीस कितनी है, 12,000 रुपये की फी होगी या 12 लाख की फी होगी। हमने स्कूल को अडॉप्ट किया है, हमने उस पर काम किया है। दैट वाज आवर कोर इन्वेस्टमेंट। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। आप रेडियो बोलो, आप न्यूज़पेपर बोलो, आप फ्लायर्स बोलो, मैं ये जगहों पे फ्लायर लेके फ्लायर दिया हुआ है मेरे हाथों से, ऐसी जगह पे जैसे अब आज है। तो मुझे कोई शर्म भी नहीं है। मैं आज भी मुझे बोल दो कि मुझे करना है, मैं फ्लायर मैं खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कर दूँ। क्योंकि आज पहले भी मैं 2 चेयर वाला था, आज भी whatever the x number of chairs I have, the practice size and whatever, but मैं आज भी 2 चेयर वाला हूँ। So one must not leave any stone unturned, whatever the opportunity get। कोई समाज में आपको एक टॉक देने बुला रहा है, आप डॉक्टर हैं, किसी का आपने अच्छा ट्रीटमेंट किया, एग्जाम्पल जैन सोशल ग्रुप आपको बुला रहा है, परसों ये ग्रुप बुला रहा है, और नरसों मुस्लिम सोसाइटी आपको बुला रही है, डोंट केयर, गो, रिप्रेजेंट योरसेल्फ, अच्छी बातें करो। और किसी को भी मिलो तो काम के लिए ना मिलो, बहुत बेचू लगता है। किसी को भी मिलो तो मिलने के लिए मिलो, काम तो अपने आप हो जाएगा। सो सिंपल है, गो टू मार्केट एंड नाउ सोशल मीडिया, पुट इट ऑन बट नॉट ऑफर्स। 10,000 ऑफ इन ट्रीटमेंट्स, नो। अवेयरनेस, create your content in a way that somebody feels to share it। आप अच्छा जानकारी एक ह्यूमन को दोगे तो उसको दिल से खुद से शेयर करेगा ना। आज मुझे बोलोगे, मैं मैक्सिमम शेयर क्या किया है, अच्छे जोक्स किए, क्योंकि एंग्जाइटी रिड्यूस कर रहे हैं हम, मेरी और मेरे दोस्तों की। अच्छी जगहों की है, खाने पीने की जगह आती है, हम शेयर करते हैं, यार यहाँ चलते हैं ना यार। अच्छी कुछ अवेयरनेस नहीं पाती है कि भाई ये पानी में ये करो तो ऐसा हो जाता है, भाई ये खाना नहीं चाहिए, हम शेयर कर रहे हैं। तो ये शेयरेबल कंटेंट अपने आप बन जाता है, बूस्ट की जरूरत नहीं रहती। तो आप अपना भी कंटेंट ऐसा क्रिएट करो कि किसी की मदद हो रही है, अपने आप चलेगा। नाउ द प्रिंसिपल इज कोरेंट। व्हाट डू यू मीन कोरेंट? अंडर द अम्ब्रेला। एक चीज करोगे नहीं चलेगा। आप बोलोगे मैंने फ्लायर दिलवाया सर, कुछ नहीं रिस्पॉन्ड आया, ऐसा नहीं होता, सब तरफ सब करना you will have to do। और लास्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल, ये सब तो कर लिया, कस्टमर एक्सपीरियंस। वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है भाई। वो खुश गया, 3 लेके आया, पर थोड़ा टाइम लगा। सो बी पेशेंट। सो पहले ये 1000 दिन का रूल था कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो 1000 दिन भूल जाओ। अब मैं 1500 कह रहा हूँ, क्योंकि यस मानते हैं कंपटीशन है, मार्केट बड़ा हो रहा है। 1500 दिन की पेशेंस रखो तो तकरीबन 4 साढ़े 4 साल अपने आप ना चले। अगर आप अच्छा कर रहे हो विद अ गुड माइंडसेट, मैं मानू ही। But like all of this needs a lot of investment, like in marketing too। वो आप मार्केटिंग बजट कैसे सेट करो हर महीने? एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है ना कि हमने डेंटल स्कूल गए, हमने 12वीं तक साइंस पढ़ी, देन वी वेंट टू अ डेंटल स्कूल। ना किसी ने कम्युनिकेशन सिखाया, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज। ना किसी ने हमें मैनेजमेंट सिखाया, ना किसी ने हमें मार्केटिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट रेशियो सिखाया, सेविंग रेशियो सिखाया, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट सिखाया। ये हमको किसी ने सिखाया ही नहीं। सो आई वुड से एटलीस्ट, कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, 10% ऑफ योर रेवेन्यू शुड स्पेंड बिहाइंड मार्केटिंग। बट एक टाइम आपकी प्रैक्टिस अगर $1 मिलियन होगी, 10% रेलेवेंट नहीं है। तो पर अभी मैं भी आज 10% पे रुका हूँ, क्योंकि हम इतना हॉस्पिटैलिटी पे फोकस कर रहे हैं। लेट अस गेट देम अ बेस्ट ऑफ द कॉफी विद इट्स बीन्स, a smoothie, an ice cream, a good sparkling water, what level of green tea you can get it. So we are investing now back in that rather than we invest back. But anyways, in your mind guys, 10%. So 10% is, अगर आप शुरुआत में कर रहे हो तो 10,000 रुपया मंथ चालू करो, फिर अपने आप हो जाएगा। The biggest money mistakes that young dentists are making nowadays? A dentist has never learned good investments. So पैसा बचाओ भाई। गुजराती में saying it, if you save money, that's your third brother who's earning at your honor. So don't spend recklessly, Ras. Don't buy crazy phones in the beginning. If you have luxury, you do anything. Don't look at your friend who's got a good car or a good house. I built my house only a year, and I wanted to do it 17 years ago. But I built everything first, and last was my house. If I would have built my house, what I am built now, I would not have built my practice the way what I had. So save it rightly, invest it wisely, and put luxury in the end, because there will be a point of time you will be only remain with luxury, but in the beginning if you try to achieve that, you will achieve. Like हर क्लिनिशियन को बिजनेस आना चाहिए क्लिनिक चलाने के लिए।
So we need to be businessmen also rather than a good clinician. क्या है क्लिनिक बिजनेस ही तो है, Business ही है. ट्रीटमेंट कर रहे हो But nobody teaches us एग्जैक्टली how to. हाँ नहीं ना, तो अच्छा है, इसलिए तो कहते हैं कि क्लिनिक खोलने से पहले 6-12 महीने किसी के क्लिनिक पे जाओ, डेंटल ट्रीटमेंट मत सीखो, उसका रिसेप्शन सीखो। रिसेप्शन हर क्लिनिक का हार्ट है। पेशेंट आ कैसे रहा है, वो मैनेज कैसे कर रहे हैं, चार्जेस कैसे दे रहे हैं, चार्जेस कैसे जता रहे हैं, दैट्स अ वैल्यू ऑफ द ट्रीटमेंट एंड ओवरऑल एवरीथिंग, हाउ दे आर परचेसिंग, how they are managing their labs, how they are managing their own humans, how they are hiring. So learn all these aspects before you get in. Right? ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से कुछ भी खरीद लिया, तो यार डील चल रही थी, फिर डंप कर लिया, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही चली गई। क्यों? क्योंकि 5 डब्बे पे 1 डब्बा फ्री था, पर आपको जरूरत एक ही डब्बे की है। आपको लग रहा है हाँ साल भर का माल हो गया, एक्सपायरी तो 2027 की है, 25 में ले लेते। लो, you don't need it now, you don't buy it now. If you need it now, click now. So all these nuances you must learn before they get into practice. Right. I agree with like all the mantras that you're giving. So one life mantra for you that everyone needs to know and should have in his or her life. मैंने पहले भी कहा, there is no alternative of hard work, and never change what you are. Be hungry, have fire in your belly, otherwise and can't do anything. So मैं कल भी वही था, आज भी वही, परसों भी वही रहूँगा अगर मैं डेंटल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। So my go-to mantra is, guys, work hard, keep the fire in your belly, and nobody is going to do anything for you. It's only you. And once you do something, don't worry about people, because everybody around you will definitely hate you. So there's a good book I can recommend here is Ishiro Ishimi, is I think Japanese author, Courage to be Disliked. And one failure in your life that changed your life. I mean, failed 100 times. What failure? Everything I'm... That turning stone in your life. कि हाँ उसके बाद आपको लगा कि your practice just stepped up. You as a person, maybe it changed you. So first of all, मेरा attitude ऐसा नहीं है मैं किसी चीज को failure ले रहा हूँ। मैंने failure देखा ही नहीं, मुझे लगा आज ये ठीक नहीं हुआ, कल I'm like this. One incident changed my life I would put here is our clinic got burned down in 2019. अगर ये जला नहीं होता पूरा तो हम ये बड़ा और बेहतर बना नहीं पाते। जिस दिन जला उस दिन खूब रोया था कि यार कौन किस डेंटिस्ट का क्लिनिक जल जाता है पूरा अच्छा था, संडे के दिन जला, कोई था ही नहीं। बट I had to do it all over again. There would be a pause in my practice. What was going to happen to my patient? मैं उनको टच भी नहीं कर पाऊंगा, काम भी नहीं कर पाऊंगा, कहाँ से नया कैपिटल जनरेट करेंगे, कहाँ से पूरा रिबिल्ड करेंगे। पर सब कुछ हुआ और उस दिन के बाद भाई साहब लाइफ हैज चेंज और फिर डर भी चला गया ना। इससे ज्यादा आदमी क्या हो सकता है, क्या खो भी सकते हैं, क्या हो भी सकता है। So that's one incident has changed me and my life too in the practice. Wow, that was a brainstorming session with you and thank you so much. Pleasure was on my mind. कि ये priceless, जितनी भी आपने सारी चीजें बताई, it is priceless. आपके एक्सपीरियंस से जो हम सीख सकते हैं उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। So it was lovely having you here.